Good morning students, how are you all? We will continue with solution of chapter number 7, Getting to Know Plants. Answer the following question in one sentence each. What do you mean by herbs? Short plants with green and tender stems are called herbs. Herbs हम किसे कहते हैं? जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है और उसे हम इजीली तोड़ सकते हैं. It is called as herbs. What type of stems do herbs have? Herbs को कैसे stem होते हैं? Herbs have green, thin and tender stems and have less branches. जो herbs होते हैं उसकी stem green होती है, thin होती है, tender होती है और उससे ज़्यादा branches नहीं होते हैं. What type of stem do shrubs have? The stem of the shrubs is hard but not very thick. जो shrub के stems होते हैं वो hard होते हैं लेकिन trees के जैसे वो thick नहीं होते हैं. What type of stems do trees have? Trees have very hard and thick brown stem. Trees को कैसे stems होते हैं? Hard होते हैं और वो हमें easily हम उसे तोड़ नहीं पाते हैं और वो कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन. What do you mean by creepers? Plants with weak stems that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. Creepers किसे कहते हैं? जिसके जो plants के stem weak होते हैं और वो सीधे खड़े नहीं रह सकते और ground पे वो spread होते हैं, they are called as creepers. Plants with which root system are not anchored deep into the soil? Plants with fibrous roots are not anchored deep into the soil. कौन से plants के roots soil में deep anchored यानी means बहुत deep नहीं उगते हैं? तो जो plant के roots fibrous होते हैं वो बहुत deep नहीं उगते हैं लेकिन वो soil के अंदर firmly hold होते हैं, right? Question number 7. List the part of pistil. The three main parts of pistil are stigma, style, ovary. Number 8. List the part of stamen. The two main part of stamen are anther and filament. जो pistil होता है उसके तीन main part होते हैं, that is stigma, style and ovary. और जो stamen होता है उसके दो main important part होते हैं, that is anther and filament. Question number 6. Answer the following in 3 to 4 sentences. What are the function of stem? The function of stems are as follows. It keeps the plant upright and provides support. वो plant को क्या करते हैं? ऊपर उगने में help करते हैं और support provide करते हैं. Leaves, flowers and fruits are arranged around the stem in such a manner that they all get sunlight. यानी ये जो plants के जो part होते हैं leaves, flowers और fruits वो ऐसे arrange होते हैं stem के साथ कि वो sunlight उसे direct मिल सके. The stem conducts water from roots to leaves and other parts and food from leaves to other part of the plant. stem जो होता है वो root से water absorb करके leaves को लेके leaves को देता है और plants के other parts को देता है and food from leaves to other parts of the stem. अब जब leaves के अंदर food बनता है वो food stems दूसरे सब parts के अंदर लेके जाता है. Number 2. What are the function of leaf? The function of leaf are as follows. Leaves help in the interchange of gases. Leaves जो होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं और जो वो स्टोमेटा एक ओपनिंग होता है उधर से गैस एक्सचेंज हो सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. They release lot of water into the air through transpiration. अब पानी जैसे इवेपोरेट होता है वैसे लीव्स भी ट्रांसपीरेशन करता है और वो पानी हमारे एनवायरनमेंट में इवेपोरेशन में हेल्प करता है, राइट. दे प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट
बाय फोटोसिंथेसिस। लीफ जो होता है वो वो प्लांट का किचन कहते हैं, राइट। व्हाई इट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट? बिकॉज लीफ इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर प्लांट, राइट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? The functions of roots are, roots anchor the plant firmly in the soil. Roots जो होता है वो प्लांट को स्ट्रेट एंकर यानी उसको सीधे खड़े रहने में मदद करता है और सॉइल में वो फर्मली स्टिक करने में मदद करता है। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट्स को पास करते हैं। Why are leaves of the plant green in color? Plants के जो leaves होते हैं वो green color के क्यों होते हैं? So the leaves of plant do photosynthesis and prepare food for the plants in the form of starch. ये जो plants होते हैं उसके leaves के अंदर chlorophyll होता है, right? और वो जो part है leaves वो photosynthesis में food prepare करने के लिए help करता है और वो क्या बनाता है? स्टार्च। अ ग्रीन कलर पिगमेंट नेम्ड क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। अब लीव्स को ग्रीन कलर क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर के छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हैंस लीव्स आर ग्रीन इन कलर। सो दिस इज द रीजन चिल्ड्रन व्हाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर। Answer the following in details. Draw a neat diagram of leaf and show its main part. Write about each part in short. The main parts of leaf are petiole and lamina. Now first is petiole. The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. यानी जो लीफ स्टेम के पार्ट से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? पिटियोल। लेमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। बिसाइड दिस टू अ लीफ ऑल्सो हैज वेन्स एंड मिडरिब। ये जो लीव्स होता है उसके फ्लैट पार्ट को हम लेमिना कहते हैं और उसके अंदर जो वेन्स और मिडरिब होता है, जो दूसरा दो पार्ट है वो है मिडरिब एंड वेन्स। Question number 2. Explain the type of plant on the basis of their height. Plant can be classified into 3 types of the basis of the height. 1. Herbs, shrubs, trees. Now number 1. Herbs. Herbs have very soft green and weak stem. Herbs को कैसी stem होती है? Soft, green और weak. Herbs are very small, non-bushy plant. Their height is usually less than 1. जो श्रब्स होते हैं उसकी हाइट बहुत छोटी होती है और वो बहुत ही छोटा प्लांट होता है और वो नॉन बुशी होता है। Their height is usually less than 1 meter. उसकी जो हाइट होती है 1 मीटर से कम होती है। They do not have many branches. उसको ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। Example of herbs: बेसिल, कोरिएंडर, पेरिविंकल, वीट, बाजरी, मेज एक्सेट्रा। ये सब जो प्लांट्स हैं वो हर्ब्स में काउंट होते हैं। श्रब्स। अ श्रब इज अ वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन अ ट्री एंड हैज सेवरल मेन स्टेम अराइजिंग एट और नियर द ग्राउंड। जो श्रब्स होते हैं उसकी स्टेम वुडी होती है और उसमें से सेवरल स्टेम्स अराइज होते हैं, राइट, और वो भी उसके बेस में, दैट इज नियर द ग्राउंड। श्रब्स हैव हार्ड स्टेम इन कंपेरिजन टू हर्ब्स एंड बेयर मैनी ब्रांचेस। जो श्रब्स होते हैं उसकी ब्रांचेस हर्ब्स से ज़्यादा स्टिफ होती है, हार्ड होती है और उसकी ब्रांचेस जो होती है वो भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हर्ब्स। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स: रोज, लेमन प्लांट, चाइना रोज, हीना, पोमोग्रेनेट एक्सेट्रा। ये सब जो प्लांट्स हैं वो श्रब्स के एग्जाम्पल है। ट्रीज। ट्रीज हैव सिंगल वुडी स्टेम विथ मैनी ब्रांचेस अटैच्ड टू इट। ट्रीज आर वेरी बिग प्लांट विथ थिक, हार्ड एंड ब्राउन स्टेम. The branches are generally attached to the upper part of the stem. Example of trees are mango tree, banyan tree, coconut tree and asopalum.
जो ट्रीज़ होते हैं उसकी स्टेम सिंगल और वुडी होती है और वो ज़्यादा थिक होती है और उससे बहुत सारे ब्रांचेस भी अटैच होते हैं। ट्रीज़ आर वेरी बिग प्लांट, उसका जो प्लांट होता है वो बहुत बिग होता है और उसकी स्टेम हार्ड, थिक और ब्राउन होती है और जो ब्रांचेस होता है वो अपर की तरफ, अपर पार्ट में स्प्रेड होते हैं स्टेम के। राइट, एग्जाम्पल इज मैंगो, banyan, coconut and asopala tree. Now see children, the diagram of herbs, shrubs and given. This you have to draw after writing the answer. Thank you and have a nice day children.